The latest development in the Baba Siddiqui murder case. For the first time, a video of accused gangster Zishan Akhtar has now surfaced. In the video, the gangster is seen openly admitting to the former minister's killing. Now, Akhtar said he carried out Siddiqui's murder on the instructions of Lawrence and Anmol Bishnoi, but claims that the brothers later plotted to slit his throat as well. Now, Akhtar vows retaliation, saying he will finish Lawrence as well as Anmol Bishnoi. He called the Bishnoi brothers Gaddar, accusing them of betraying after using him for the hit. He also alleges that Lawrence and Anmol Bishnoi are aligned with anti-India elements and have Khalistani links as well. Now, Zishan Akhtar says that his dream was to become an IPS officer, but instead he became a gangster. Now, Akhtar fled India shortly after Siddiqui's killing and is believed to have aligned himself with the Rohit Godara gang while operating from an undisclosed foreign location. Now, viewers, Baba Siddiqui, a former minister and influential political figure in Maharashtra, was shot dead earlier this year. And right now, the investigation in the killing is continuing. देश के जो गद्दार थे, सारे भाइयों को मैं ज़ीशान अख्तर आप सबसे एक बात सीधी सी करनी चाहता हूँ कि आज दुनिया को पता चल रहा है कि देश के सबसे बड़े गद्दार कौन है। वो है अनमोल और लॉरेंस, ठीक है ना। इस से बाबा सिद्दीक की मरवाने के बाद और छोड़ दिया एक जगह पे, और मुझे मेरा गला कटवाने के चक्कर में इसको ये नहीं पता था कि बाद में ये मतलब कि भगवान ने मेरे हाथ पकड़ा और फिर अब गले कट रहे हैं ना इनके। मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ अपने बड़े भाई रोहित गुदारा साहब का, जिन्होंने गला कटवाया दुबई के अंदर, ठीक है ना। मेरे भाई हैं वो। और दूसरी बात ये है, इन्होंने अपनी मिट्टी को FBI वालों के पास भेज दिया अपने देश को, किस चक्कर में कि इसका भाई बचा रहे। तो मैं तो नहीं मानता कि इन्होंने बचाया है कि नहीं, अगर 1 महीना वहां रुकता ना मार देते उसको, ठीक है ना। अभी आपको पता ही होगा कि इसके जो हैरी बॉक्सर है वो बातें कर रहा है और आरजू है रोहित गुदारा भाई के बारे में बातें कर रहा है। और मैं कसम खा के ये बात कह सकता हूँ कि मेरे सामने बड़ी बड़ी ये तारीफें किया करता, और आज सिर्फ उसके बहकावे में आने के बाद, चलो आ गया, आप तो दुश्मन है, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और अब देख नहीं लिया, जो देश के जो गद्दार थे उनको फंडिंग ये करता था, ये जो थे अपने खालिस्तानी गतिविधि वाले के साथ मिला हुआ था, और यहाँ पर कहता था कि मैं सच्चा देशभक्त हूँ, ठीक है। उसके बाद अब फरीदाबाद वाले केस में नाम आ गया इसका, अनमोल का। वही हमें तो सब पता है कि ये गद्दार है कि नहीं है। देखो, बाबा सिद्दीकी को मरवाने के बाद मेरा गला कटवाने की तैयारी में थे, तो अगर उस टाइम मैं इंडिया में कंडक्ट करके निकलता ना, तो आज मैं थोड़ा या तिहाड़ जेल में बैठा होता। तो इसी इनके चक्कर में बॉर्डर पार मुझे बट्टी से मदद लेनी पड़ी। तो ऐसी बात है कि इसने तो किसी के थप्पड़ नहीं मार रखा। जितने मर्डर हुए हैं ना, ये गोल्डी भाई और अपने रोहित गुदारा भाई उनने किए हैं। इसने क्या किया, किसी के थप्पड़ नहीं मारा है। खुद तो 5-5 लाख के जूते पहनता है, और वहां 3500 उसके लिए तरसते हैं भाई, वो कैंटीन के लिए। All right, that's the latest we know. For the first time in the Baba Siddiqui murder case, a video has now surfaced showing the accused gangster Zishan Akhtar. Now, in the video, the gangster is seen openly admitting to the former minister's killing. Akhtar also says that he carried out Siddiqui's murder on the instructions of Lawrence and Anmol Bishnoi, but further claims that the brothers later plotted to slit his throat as well. And now some political news. There is reportedly a push for a leadership reshuffle in the state of Karnataka. Now, a late-night meeting in New Delhi between Congress President Mallikarjun Kharge and several Karnataka Congress leaders, which are loyal to Deputy CM DK Shivkumar, has now intensified ongoing speculation about a possible shift that could take place in the state's leadership. Now, rejecting claims that his supporters were pressurizing the High Command to make him the next Chief Minister under a power-sharing formula, DK Shivkumar said that making a group is not in my blood. All 140 MLAs are my MLAs. Now, the Siddaramaiah government, remember, is approaching the 2.5-year mark, and the Chief Minister has decided to reshuffle the cabinet. DKS also added that because of this, all of them are interested in becoming ministers.
Meanwhile, Chief Minister Siddaramaiah reiterated that he will remain in office and will present budgets myself, questioning why the media continues to speculate about a change in the leadership. What would have been an easy, case to solve for the Congress High Command has become a tightrope walk post the Bihar debacle. That is obvious, and that's what we are seeing here now. Because whether there was a pact between D.K. Shivakumar or Siddaramaiah before the High Command in 2023, 30 months ago, is anybody's guess. And we do have enough journalistic experience to say that there was one, though there was no publicly announced pact, because such pacts are not publicly announced. Number one. Number two, what is happening is, apart from Siddaramaiah, nobody is saying that Siddaramaiah is going to be here for 5 months in the same. I'm talking about between Siddaramaiah and D.K. Shivakumar. D.K. Shivakumar is saying that yes, if the High Command wishes, Siddaramaiah shall continue for 5 years. And he's not even making these public statements that I demand my share of power and all. Publicly, he is maintaining a very, very well-curated image of a party loyalist. Whereas Siddaramaiah continues to, flex his muscles in terms of numbers of MLAs with him and in terms of his achievements, in terms of his agenda politics. He continues to flex his muscle and he continues to say that, yes, I shall remain for 5 years. That gives away the plot very easily. That Siddaramaiah, somewhere down the line, he is trying to challenge the party high command, take action, and face the consequences. Whereas D.K. Shivakumar is telling everybody, and to the party high command also, I shall follow what the party high command says. If they say that Siddaramaiah is for 5 years, no doubt about it. We'll all work under him. That's what is his official line. Whereas supporters are lobbying. His supporters are lobbying in Delhi, and his supporters are saying in Bangalore also. And this evening, what happens at Karge residence, we are all curious to see. And now, viewers, after the attack outside Delhi's Red Fort, Jammu and Kashmir police have stepped up vigilance. My colleague Mehraj Ahmed brings us ground report from Srinagar, where officers in the city are now inspecting shops under a new security plan. Take a look at this report. दिल्ली में हुए लाल किले ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो ज़मीनी स्तर पर काफ़ी सतर्कता बरत रही है और आए दिन जो है वो रेड्स और चेकिंग की जा रही है। विशेषकर अभी 3 चीज़ों पे जो है वो चेकिंग जो है और ये कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो डाटा जो कह सकते हैं कि जो कंजप्शन है वो कई एंटी नेशनल एलिमेंट्स के द्वारा तो नहीं जो है पर्याप्त की जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैस के जो आउटलेट्स हैं उनमें विशेषकर जो है डाटा खंगाला जाता है कि आखिर अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा कंजप्शन में या ज़्यादा मात्रा में जो है गैस की जो है जो अपनी जगह पे सप्लीमेंट को जो है वो प्रोक्योर करके रखता है तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे ही जो है हम श्रीनगर में एक जो है एक आउटलेट पर है सुरक्षा कारणों से हम जो है प्रॉपर जगह नहीं बता सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की ये कार्रवाई जो है विशेषकर इसी चीज़ को लेकर है कि जो मंसूबे कहीं ना कहीं दिल्ली में थे आतंकियों के वो कहीं ना कहीं कश्मीर में ऐसे मंसूबे ना बना रहे हो और उसको विफल बनाने के लिए ये जो ऑपरेशन है एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन के चलते ऐसे जो है छापेमारी यहाँ पे की जाती है। पूरे कश्मीर की बात करें तो 3 जगहों पर जो है विशेषकर 3 जगहों पर या दुकानों पर जो है विशेषकर ऐसे छापेमारी देखी जा रही है, जिसमें अगर हम फर्टिलाइज़र्स की बात करें विशेषकर अमोनियम नाइट्रेट और हार्डवेयर की दुकान पे जहाँ पे ऐसे केमिकल्स मिल सकते हैं जो इनफ्लेमेबल नेचर के हो सकते हैं, और तीसरा ऐसे ही गैस रिफिलिंग आउटलेट्स पर जो कि कहा जा सकता है कि जो जल सकते हैं या विस्फोट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों पर ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की नज़र है और ऐसे ही आउटलेट्स को जो है उनमें डाटा जो है वो खंगाला जा रहा है। पूरे कश्मीर समेत श्रीनगर में भी जो है विशेषकर ऐसे
दुकानदारों की जो है चेकिंग की जाती है, इनसे जो है डाटा लिया जाता है, विशेषकर जो सेकंड हैंड गाड़ियों का जो है कहीं न कहीं बिज़नेस संभालते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ऐसे एक पुलिस पार्टी का भाग बने हैं जो कि अभी चेकिंग कर रही है श्रीनगर के एक ऐसे इलाके में, जो कि बताया जा सकता है कि जो यहाँ पे ये आउटलेट है, ये सेकंड हैंड गाड़ियों के बेचने का काम करता है। लेकिन बता दें आपको कि दिल्ली में कहीं न कहीं जो हरियाणा नंबर की गाड़ी जो है वो इस्तेमाल होने के बाद उसमें जो है मल्टीपल ओनर्स निकले थे, तो कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों को काफ़ी समय भी लगा था और कहा जा सकता है कि जो एक प्रोसेस था वो काफ़ी लंबा हो गया था, क्योंकि मल्टीपल ओनर्स को जो है कहीं न कहीं उसके ज़रिए से बदल दिया गया था। उस गाड़ी के मल्टीपल ओनर्स थे, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल एक प्रोसेस अभी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा विशेषकर चलाया जा रहा है कि जो सेकंड हैंड ओनर गाड़ियों को बेचने का काम करते हैं यहाँ पे, उनसे भी डाटा जो है वो प्राप्त किया जा रहा है। कोशिश ये है कि अगर कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी जो है उसका जो प्रोसेस एक होता है वो पूरे तरीके से लीगल प्रोसीजर के अंडर हो। तो कहीं न कहीं क्योंकि कल अगर कोई भी अप्रिय घटना इस गाड़ी के ज़रिए से घटती है तो उसमें कहीं न कहीं काफ़ी समय लगता है खंगालने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टुकड़ी जिसका TV9 अभी भाग बना है, वो विशेषकर ऐसे आउटलेट्स पर भी छापेमारी कर रही है, जो कहा जा सकता है कि जो सेकंड हैंड कार्स की डीलिंग में जो है शामिल हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऐसे ही आउटलेट्स को चेक किया जा रहा है और विशेषकर इनसे डाटा लिया जा रहा है और वो एक प्रोसेस देखा जा रहा है कि क्या अंडर लॉ, अंडर लीगल प्रोसीजर जो कार्रवाई होती है वो यहाँ पे उसका पालन किया जा रहा है या नहीं, ताकि समय रहते जो है सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया जाए कि और अगर ऐसी कोई किसी प्रोसीजर की जो है वायलेशन दिखती है तो उसके चलते कहा जा सकता है समय रहते जो है सिक्योरिटी एजेंसीज अपना काम निभा सकती है।